that encourages originality, honesty, and fearless creativity. Every project under Backstage carries a piece of that soul. I'm presenting to you Duniya Bekar Hai, Bakhtiyar and Sohail. Congratulations to the entire team. So wait. ये करना है वो करना है बट ऐसा होता है कि अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी मच तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि अलग अलग डिसीजंस एक साथ आते हैं दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैक स्टेज रणवीर सोहेल बैक स्टेज You said right between रणवीर and Sohail who wins? So जो भी disagreement होता है at the end from both of us our music wins. So yeah. Nice. Sohail, our music wins at the end. Anybody else who has a question? Yes, please. Hi. Director of the song on the stage. I don't know why it's so late, but come. Give a huge round of applause for Akash. Can we have a huge round of applause? And before we end, Steve has been a rage. Congratulations to the entire team. Today we've got this track which is rolled out. It is beautiful. So before we even go further, I would request Reese and singing something on the song, your favorite one. Okay. Let's sing the song. We'll sing the hook. 3, 2, 1, go. दुनिया बेकार है सच्चा तेरा प्यार है सच्चा तेरा प्यार है दुनिया बेकार है सच्चा तेरा प्यार है सच्चा तेरा प्यार है दुनिया बेकार है Thank you. I think that was just maybe we want to hear It's the hook of our song. Yeah. something more in it. More on it. सारे सितारे हैं यहाँ बस तू ही अकेली चांद सी है कोई रहे या ना रहे तेरा होना ही जरूरी है जो मेरे रूबरू आना है मैंने कब मेरा है तू खुद को भूला पर याद तू है इतने नशे के भी बाद तू है क्यों जाने क्यों दुनिया बेकार है सच्चा तेरा प्यार है सच्चा तेरा प्यार है दुनिया बेकार है सच्चा तेरा प्यार है सच्चा तेरा प्यार है दुनिया बेकार है Thank you. Before we begin, wishing you a very happy birthday. Thank you. What better day to release your song? What do you have to say in the whole concept of Backstage? How did it begin? And reaching out to this song today. So we announced the Backstage on Sohail's birthday, and we got the मेरा favorite वाला गाना on my birthday. So I'm happy with that. Absolutely. So, what's the concept of Backstage? So Backstage concept is very easy. Like every artist needs a platform. So we also wanted a platform, but we were looking forward. We have to do something very out of this industry, very different. So we met DTM Yash Bhai, and that's how we began to think about Backstage. Then we met Akash, the director of Backstage, and similarly, with the growing roots, we met amazing artists like Khanzadi. We met Raj Burman, we met Kavita ma'am, and everyone like got into this. कुछ ना कुछ they also had the vision. Right. Okay, let's make it big. Why to just कैसे भी करके we know we're not going to release it ऐसे ही करके कुछ भी करके. So everyone had like
सबका एफर्ट है इस गाने में, सबका, एवरी आर्टिस्ट, एंड दैट्स वाई सब इतना प्यार मिल रहा है इस गाने को. Backstage is a platform for music. Be it new artists or known artists, they come together to create something magical and unstoppable. So yeah, we want to create something which is unforgettable and just break the boundaries. Art is getting merged, be it new ones, best knowns, they're getting merged on a single track. And that's why we created Backstage, to create a history. Thank you. Composing and having Kavita ji sing video on Raj Khanna. It was like a wonderful experience. I'm sure. Tell us more about that. So yeah, that's a very actually like amazing collaboration because it was something very different, a pop and different voice like Khanzadi with Raj Burman being the male voice, and Kavita ma'am is actually, she's a legend, and उनका ये गाने में आना was like the best part of the song. तो ये गाने इतना प्यारा collaboration है, every artist has given their best, so that's how we are very happy with the song. What's been your experience on backstage during the central part of the song? Oh, it's lovely. I'm really grateful to be a part of Backstage. And, they are very hardworking, very supportive. बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे. मैं तो रैपर हूँ, बेसिकली मैं रैप करती हूँ, पर इन्होंने मुझे बोला कि नो, यू नो व्हाट, यू हैव अ पॉप वॉइस, तो आपको ना गाना भी गाना चाहिए, यू नो, जस्ट एक्सपेरिमेंट. एंड फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है मेरा लाइफ का ये, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिस गाइज जिन्होंने समझा मेरे टैलेंट को. और मैं डे बाय डे सीख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ इन दोनों से, एंड होपफुली आगे जाके भी हम और काम करें. दैट्स व्हाट आई विश. Definitely. एंड या लवली. So technically, this gets your debut with release. यस यस यस. एक गाना अच्छा गाना बनने में और उसके लिरिक्स की बहुत ज़रूरत है. और बहुत अच्छा लिखा है आपने. तो क्या फील रहा, कैसा रहा, हुक स्टेप टू एवरीथिंग? ये एक्चुअली अभी जल्दी में मेरी शादी हुई थी, तो मैं गांव से यहाँ आया मुंबई, तो शाम को लिटिल कहीं पे हो गया था, तो मैडम याद आ रही थी. अब वो थॉट आ गया कि इतने नशे की भी बात तो भूल ही नहीं पा रहा था, तो और इन लोगों ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया, और अब आप लोगों के माध्यम से सारी दुनिया तक जाएगा. बस आप सब लोग उसे प्यार दें. पर हाँ, ये दिल से निकली बात है और मुझे पता है दिल तक पहुँचेगी. Lovely. आकाश बहुत अच्छे से बेहतरीन से आपने इसको डायरेक्ट किया. Somebody also must be direction right. हिंदी गाने में कविता जी है, राज कपूर है, many artists and they all have did their part very beautifully. So with Backstage, it's always big. So I don't get. It's much more like कि मेरे को सिर्फ एक और दो आर्टिस्ट नहीं मिलते. दो आर्टिस्ट तो मेरे साथ ही बैठे रहते हैं हमेशा. एंड जब मेरे पास दम अली भी आया था, इट वाज अगेन वी हैड लाइक, आपने देखा, इट वाज अ मल्टी स्टार, देयर वर 5 सिंगर्स इंक्लूडिंग. सिमिलरली विद सेकंड सॉन्ग आया तो इट वाज लाइक लुकिंग कि हम लोग 2 लोग करेंगे पहले कि क्या करेंगे, लेकिन फाइनली एक कॉल हुआ कि नहीं, लेट्स स्प्लिट इट इनटू 3, और वो वापस हमारे फॉर्मेट में आ गया. एंड देन वी केम अप विद दुनिया बेकार है एक सॉन्ग हमारा, और 5 आर्टिस्ट आर ब्रिलियंट आर्टिस्ट, सॉन्ग ब्यूटीफुली. और वीडियो वाइज आप लोग ने देखा कि हाउ वाज इट, एंड आई होप फर्स्ट आपने दमली भी फॉलो किया है हमें विद द मीडिया, एंड सेकेंड आप फिर वापस दुनिया बेकार है देख रहे हैं. तो ऑडियंस इज मच मोर द रिसेप्टिव वन, जो हमको व्यू बताते हैं कि कौन अच्छा है. सो आई होप यू ऑल गाइस आर लव. You both have been students of Nikhil and coming back to Kshitij and launching your song must be a very enriching experience. Because Kshitij is actually, I'm very connected to Kshitij because I always used to see कि many artists are coming and performing. It was a dream to perform in Kshitij, which I hope comes true on the pro nights. But before that, I was like, I want to stay connected to Kshitij. मुझे ये backstage को Kshitij के साथ जोड़ना है. So Sohail and I decided that let's sponsor Kshitij. So we are the associate sponsor for Kshitij, and इसी के साथ हम अभी आगे जितने भी गाने we'll do it here. जब आप दोनों गाना कंपोज करते हैं तो दोनों भाइयों में झगड़ा होता है? नहीं. अभी एक्चुअली क्या है, फिल्म है, हर चीज़ है, तो उसके हिसाब से जो भी कंपोज बनती है, अगर कोई पसंद नहीं आती है वो कहीं और चली जाती है. बाकी तो As I said before, कि लड़ाई
होती है लेकिन म्यूजिक सॉल्व कर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन एंड में सोल्यूशन होता है, जीतता वही है, हमारा म्यूजिक जीतता है. सो या, इट्स नॉट रमीज, इट्स नॉट सोहेल, इट्स रमीज सोहेल म्यूजिकल. देसी तड़का म्यूजिक especially from you, I would like to know. Desi Tadka Music is actually the biggest label coming, Yeah. and I know that, and I say it because I know it. क्योंकि इतना एक विजन को आगे लेके जाना, इट्स वेरी हार्ड फॉर अ लेबल, बिकॉज वो एक गाना दो गाना कोई भी सोच सकता है कि हम एक गाना कर लेंगे इनके साथ, दो गाना कर लेंगे. समवन हु इज स्टैंडिंग विथ यू फॉर अ सीजन एंड ऑल्सो साइनिंग अस फॉर द 5 सीजन्स कमिंग. तो बैक स्टेज के 5 सीजन जितने भी है सब हम ऑलरेडी साइंड है. तो ऐसी हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई. एक्चुअली बताता हूँ कि बहुत लेबल्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया विद अ लॉट ऑफ स्टफ कि हम ये सब कर लेंगे, बट वेर एवर यू हैव अ फैमिली लाइक बॉन्ड, वहाँ पे काम करने में मज़ा आता है. तो देसी तड़का म्यूजिक विद बैक स्टेज सीजन 1 एंड मोर अपकमिंग थिंग्स विल बी द बिगेस्ट लेबल. We're really blessed to have Desi Tadka Music in Yash our bhai life. and everyone. Yash bhai, everyone. Yash bhai is a brother to us, and his vision, it aligns with ours. Like we are growing. So Yash bhai is also like, he has a huge vision, and I respect him so much. We missed you today, but next event पे हम साथ आएंगे. It was a wonderful experience. Actually no, डेब्यू मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि पहले भी मैंने किया है काम, पर ऐसा नहीं किया. फाइनली लाइक मेरे सामने माइक था, मेरे साथ कविता मैम थी, राज बर्मन थे, ये दोनों थे, द होल टीम यू नो. ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा मैंने किया नहीं था. सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने लाइक यू नो जैमिंग किया, और वीडियो पे भी ऐसा लग रहा था दैट वी वर सिंगिंग लाइव. सो you know it was a dream for me, you know, to collab with Kavita ma'am. And मैंने उनको बचपन से ही सुना है, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, ये सब तो हम जानते ही हैं. सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे अभी भी सुनते हैं. सो या आई मीन ड्रीम कम ट्रू हो गया मेरे लिए तो. एंड अगेन लाइक यू नो जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है शब्द, पर फिर भी लाइक यू नो जस्ट it's a wonderful experience. सबसे पहले आपकी टीम को बहुत बधाई हो, जिस तरह की यंग टैलेंट दिखा रहे हैं, लेके आ रहे हो आप. सेकंड सॉन्ग है आप लोगों का देसी तड़का के साथ. देखा ये गाने भी काफ़ी यंग लोगों को जोड़े गया है, और जानना चाहते हैं कि जो नाम है सच्चा तेरा प्यार बाकी दुनिया में, इसका थीम था, इनका मतलब सोच था किस तरह का नाम रखा जाए. उनका जो अभी लिटिल के बाद इनका ही उनका था ये कॉन्सेप्ट. वो मैं अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा था, तो मैंने कहा कि दुनिया बेकार है, सच्चा तेरा प्यार है, तो उसके लिए लिखा था. इन्होंने उसको कहाँ से कहाँ हमसे बैठे थे एंड वी वाज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, सो देयर केम अ थॉट व्हेन द वर्ल्ड फील्स chaotic बट लव टेक्स ओवर. तो यही थॉट पे हमने गाना बनाया कि दुनिया बेकार है, सच्चा तेरा प्यार है. दुनिया इज वर्थलेस बट द लव इज ट्रू. सो यस, कास्टिंग की बात करें अंजाती को कितनी सोचा कि इस तरह की ब्यूटीफुल लड़की इसमें फिट हो रहा है. ये मैं लेना चाहूँगा एक वीडियो में इसका